नेक्स्ट। एग्जाम में आप कहीं पे भी टेक्स्ट बुक कराते हैं, वहाँ पे आपको 1 घंटे पहले पहुँचना होता है और ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना होता है। उसके अलावा आपको और कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही आप एग्ज़ाम देना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में इस तरह का एक विंडो आता है जहाँ पे आपको चांस दिया जाता है टू चेक योर हेडफोन। Application forms for sharing accommodations must be completed 2 months in advance. सबको क्लियर सुनाई दिया? अगर हाँ तो हाथ ऊपर करो। ओके। वहाँ पे भी चेक एज मैनी एज टाइम यू कैन। ओके, क्योंकि बाद में अगर हेडफोन बंद होता है तो आपकी गलती रहेगी। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू चेक माई हेडफोन। इसमें सिर्फ हेलो 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 रिपीट में मत बोलो। आपको नहीं पता आपकी आवाज़ एको आ रही है या नहीं आ रही, तो रीड जो भी ऊपर लिखा हुआ हो वो। ओके, तो आपको आवाज़ क्लियर आएगी। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू चेक माई हेडफोन। इसमें सिर्फ हेलो 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 रिपीट में मत बोलो। आपको नहीं पता आपकी आवाज़ एको आ रही है या नहीं आ रही, तो रीड जो भी ऊपर लिखा हुआ। परफेक्ट। नेक्स्ट। क्वाटी कीपैड बाय डिफॉल्ट होगा, तो ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे एग्जाम सेंटर में, तो आपका एक नाम लिखा आता है वहाँ पे और आपको कहा जाता है कि इसके बाद ये नेक्स्ट के बाद क्वेश्चन शुरू होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। घबराओगे नहीं, कितना आवाज रखना, क्या वॉल्यूम रखना, वो सब इसके साथ ही स्टार्ट होगा। आपको भी इंट्रोडक्शन देना है। ओके, आपको भी इंट्रोडक्शन बोलना है। My name is Vinay Jaisinghani. I am coming from Gandhinagar, which is in Gujarat, from India. I have completed my Masters of Engineering from Gujarat Technological University. I am giving PT academic because I want to go to abroad for further studies. क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करते हो तो आपका एग्जाम एक्चुअल शुरू होता है यहाँ से। In every cultivated language, there are two great classes of words which, taken together, comprise the whole vocabulary. First, there are those words with which we become acquainted in our daily conversation, which we learn from the members of our own family and from our family associates, and which we should know and even use if we could not read or write. रीड अलाउड करने के दो तरीके। पहला तरीका, एक्चुअली जो प्रिपरेशन में आप पढ़ने वाले हैं वैसा वैसा पढ़ो। Blustered by the result of laboratory experiments, researchers dare to say that gaming might be mentally enriching. These scholars are the first to admit that games could be addictive, and indeed part of their research explores how games connect to reward circuit of human beings. मन में मत पढ़ो। ओके, उसको एक्चुअली बोलो विदाउट फुल स्टॉप एंड कॉमा। अब 10 सेकंड है तो आराम से फुल स्टॉप कॉमा देखते रहो और लंबी सांस लेते रहो। Blustered by the result of laboratory experiments, researchers dare to say that gaming might be mentally enriching. These scholars are the first to admit that games could be addictive, and indeed, part of their research explores how games connect to the reward circuit of human beings. Okay, वापस। Despite many similarities with literary political debates in other nations, there are also ways in which the cultural and political situation in Scotland has left the study to Scottish literature in a significantly different conditions from that of literary studies in many other parts of the world. Literary studies, literary political debates. Despite many similarities with literary political debates in other nations, there are also ways in which the cultural and political situation in Scotland has left the study of Scottish literature in a significantly different condition from that of the literary studies in many parts of the world. ये वर्ल्ड वाला वर्ड गलत निकल गया, चलेगा, वहां पे एक गलती काटेगा वो। वर्ल्ड ऐसे हो गया, ठीक है। सेकंड तरीका रीड अलाउड करने का, जो जो हार्ड वर्ड्स है खाली उतने पढ़ो। रैपिड चेंज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इंक्रीज बिजनेस, कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, पर्टिकुलर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट,
emphasized on integrating rather than a controlling system. Competitiveness. Okay. An environment of rapid change, technological innovations, and increasing business competitiveness has highlighted the growing importance of management development. In particular, the general movement towards great employee involvement in making things happen through people has emphasized an integrating rather than a controlling system of management. Psychology is the study of cognition, emotions, and behavior. Psychologists are involved in variety of tasks. पढ़ो पढ़ो पढ़ो. Psychology is the study of cognitions, emotions, and behavior. Psychologists are involved in a variety of tasks. Many spend their careers designing and performing research to understand how people behave in specific situations, how and why we think the way we do, and how emotions develop and what impact they have on our interactions with others. Tada! Okay. 6 आए हैं, अब तो मेरे को लगता है 7 आएंगे. Efficiency is not your friend when it comes to cognitive growth. In order to keep our brains making new connections and keep them active, you need to keep moving on to another challenging activity as soon as you reach the point of mastery in the one you are engaging in. साथ आए. Political scholars had historically recognized the social love of the mass media. The impact of mass media on the election and governing process has greatly increased over the last 40 years. Tomorrow, the mass media will become the central nervous system for your society and the major source of public information. Next time, we'll discuss the influence of the media on public policy. Next time, we'll discuss the influence of public media on the public policy. एक public word ज़्यादा बोला मैं, चलेगा. I've had a very happy childhood, so I sometimes forget that others haven't. I have had a very happy childhood, so I sometimes forget that others haven't. 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो. But we have confirmed the dates and planned the optional extra visits. But we have confirmed the dates and planned the visits. Extra optional अटकूंगा उसमें. University students pay a lot of money for their education. University students pay a lot of money for their education. आवाज में दम. Clear. There are many good methods that can be used. There are many things that can be used. बीच का एक अजीब था थोड़ा सा. The amount of sleep that adults need doesn't change as they get older. The amount of sleep that adults need doesn't change as they get older. Sleep word थोड़ा अजीब था. The problems that science solves far outweigh the problems that it may bring.
The problems that science solves far outweigh the problem it may bring. It is important that you work as a team on this project. It is important that you work as a team on this project. Detailed analysis of population growth has revealed some alarming predictions. Detailed analysis of population growth alarming predictions. Students who wish to apply for an extension should approach their tutors. Students who wish to apply for extension should approach their tutors. Visual aids can make presentations clearer and more interesting. Visual aids make presentation clear and more interesting. Repeat sentence की तो चिंता नहीं. This is technically a bar graph. ठीक है. 9 चीजें मेंशन करना जरूरी होता है. ठीक है. आपको अगर मेरे हाथ दिख रहा होगा, विल ट्राई कि वो 9 चीजें मेंशन. The following bar graph gives information about inbound tourists in Ecuador. On the x-axis, I can see many numbers such as 0, 10, 20, 30, and many more. On the y-axis, I can see different countries such as USA, Colombia, Peru, and many more. From the graph, it can be said that the highest value is 30 and the lowest value is 27. I can see 20, which is a higher value. I can see 21, which is a lower value. I can see percentage of total arrivals. I can see USA, which is 21%. I can see Peru, which is 20%. I can see others, which are 32%. Overall, the given bar graph is very informative. लास्ट जो आई कैन सी है वो टाइम पास के लिए है. आगे का हाईएस्ट लोएस्ट हायर लोअर ये सब बोलना पड़ता है. ओके, वही सेम पैटर्न पाई चार्ट के लिए, वही सेम पैटर्न. 9 चीजें की जगह इसमें 8 चीजें हो गई, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, डायरेक्ट कैटेगरीज है. ओके, टॉपिक किस बारे में लिखा ही नहीं है, हद हो गई. The following pie chart gives the information about comparison between different countries. I can see different categories such as Australia, USA, Japan, and many more. From the pie chart, it can be said that the highest value is covered by others, which is 43%, and the lowest value is covered by China, which is 6%. I can see 21%, which is a higher value. I can see 5%, which is a lower value. I can see green color. I can see Japan, which is 11%. I can see USA, which is 14%. Overall, the given pie chart is very informative. टॉपिक नहीं लिया था वाह. बार ग्राफ अगेन. The following bar graph gives information about estimated world literacy rate by region and by gender in the year 2000. On the x-axis, I can see different countries such as developed countries, East Asia, Sub-Sahara Africa, and many more. On the y-axis, I can see different numbers such as 0, 10, 20, 30, and many more. From the graph, it can be said that the highest value is 50 and the lowest value is 10. I can see 40, which is a higher value. I can see 20, which is a lower value. I can see 2 categories, one is male, another one is female. I can see developed countries. So overall, the given bar graph about estimated world illiteracy rate is very informative. पहले literacy बोला, अब illiteracy. Notes बनाओ. There are 4 fundamental forces at work in the universe. Some of them are very familiar from everyday life, some of them are not. So we all know about gravity. That's one of the 4 forces. It's what keeps us anchored to the surface of the Earth, keeps the Earth in orbit around the sun. There's another force that we're all very familiar with, which is the electromagnetic force. That's the force that is responsible for electricity, electric currents, for light, for the sun's light. That's the electromagnetic radiation coming from the sun to the Earth. There are 2 other forces, though, that are somewhat less familiar, and they're the nuclear forces. They are forces that are at work within the nuclei of atoms.
One of those forces is called the strong nuclear force. That really is a force that binds protons to protons, binds the quarks inside of the protons and neutrons, keeping them from flying out. The other nuclear force is called the weak nuclear force. And that's a force that predominantly we know of because it's responsible for radioactivity, radioactive decay. So those four forces, strong nuclear force, weak nuclear force, electromagnetic force, and the gravitational force, those are the forces at work in the universe. The topic was all about four fundamental forces in the universe. The first fundamental force is gravity, which is quite known by everyone. The second fundamental force which was stated was electromagnetic force, which is responsible for sun's light. The third fundamental force was nuclear force, and it has two parts. One was strong nuclear force, which is responsible for atoms and protons, neutrons to bind together. And the last force was weak nuclear force, which is due to the radioactive force. Overall, the given lecture on four fundamental forces in the universe was very informative. ये कोई टेम्पलेट नहीं था, okay? Which major branch of science deals with classification of living things? Biology, biosphere biology. Ice sports are likely to feature in which Olympics, summer or winter? Winter. What do people wear if they can't see very well? Specs, sunglasses, glasses, specs, glasses, sunglasses, sorry. Which sweet food is produced by bees? Honey. Easy. Which item of cutlery has several prongs, usually 3? Fork, fork, What is the name of ceremony in which two people get married? wedding ceremony, engagement ceremony, wedding ceremony, marriage, wedding, engagement. नहीं, वो समर विंटर में दोनों नहीं बोल सकते हैं। पीछे पीछे जो ऑप्शन दिया है ना, तो जो पहला बोलोगे वही कैच होगा। तो वो समर विंटर के ऑप्शन में दो आंसर मत दे देना। अब सॉर्टेड जीवन, अब ज्यादा कुछ बोलना है नहीं। जैसे इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स और ये सब जानबूझ के दिए। सम मोमेंट सीम मोर इंपॉर्टेंट इन द हिंडसाइट दैट दे वर एट दैट टाइम, डेविड दे फॉर एग्जांपल, हटाओ। नाम नाम तो लेने हैं नहीं। नाम एक लाइन मेरे को मिली जस्ट एज इम्पोर्टेंटली, ये वाली।
पढ़ते हैं एक बार। Although some moments seem more important in hindsight than they were at the time, then moments and events that are included in narrative histories are open। कहाँ से ली ये मैंने लाइन? then moments and events यहाँ से ली ना। फर्स्ट वर्ड सेकंड फर्स्ट वर्ड इज कहाँ गया? हाँ हाँ, वो मैं चेक कर रहा हूँ, रुक जाओ। स्पेलिंग वगैरह चेक करना पड़ेगा। The moments and events are included in narrative histories are open to multiple as। सही है। देखो मैंने क्या किया है इसके अंदर, ऑल्दो तो डालना ही था। ऑल्दो के बाद एक लाइन मैंने ले ली यहाँ पे। ये लाइन में कोई नंबर नाम नहीं है, कॉमा डाल दिया। ये लाइन वैसे की वैसे मैंने लिख दी यहाँ तक। फिर मेरे को लास्ट लाइन ये वाली मिली थी, हिस्ट्री इज नेवर सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये एक फुल स्टॉप वाली लाइन है, हिस्ट्री इज नेवर सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके बाद ये एंड के बाद जो कहना चाह रहा मेरे को नहीं लिखना, आई एम ओके विथ इट। पर मेरे को इसको इसके साथ कनेक्ट करना है ना, तो मैं यहाँ पे वैसे पहले मैंने सो लिखा था, बट टेक्निकली मैं देखूँ तो सो हिस्ट्री इज नेवर सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई कारण नहीं दिया है मैंने, क्योंकि हिस्ट्री सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कह रहा है ऑल्दो ये चीज़ें हो रही है, तो उसका इंटरप्रिटेशन यानी उसके ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री सिंपल नहीं होती है, तो ये ऑटोमेटिक मीनिंग हो गया। इसीलिए हिस्ट्री सिंपल नहीं होती है ना, वो ज़्यादा डीप में मीनिंग चला जाएगा। समझो बात कि मैं, मेरे को है ना, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ऐसे सो लिख दूंगा तो गलत है। आई विल गेट दिस को, बट एक रिस्क रहता है। ओके, एक रिस्क रहता है कि यार अगर आप खुद भी इसका मीनिंग समझने जाओगे तो यहाँ पे क्योंकि इज ज्यादा मल्टीपल इंटरेक्शन, क्योंकि हिस्ट्री सिंपल नहीं होती, ये ज्यादा सही है। इसीलिए की जगह मैं क्योंकि चूज किया, तो अरेस के आगे पीछे कॉमा आता नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा ना, दैट यू हैव टू चूज, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, क्या क्या चूज कर सकते हो। फॉर, बट, सो, एंड, एज, लॉन्ग, इतने पैसे चूज करो। उसमें मैं फॉर तो मैंने आज तक यूज नहीं किया, मैंने इतनी चीजें यूज की और इसके आसपास ही खेलता हूँ। पर इसमें कंडीशन, इन सबसे पहले कॉमा आता है। ओके, इन सबसे पहले कॉमा आता है और कॉमा के बाद में स्पेस, एस के आगे पीछे कॉमा नहीं आता। एस के आगे पीछे कॉमा नहीं आता है। ओके, बस इतना आपको कंडीशन याद रखने का है। नो फर्दर मोर, नो देयर फोर, ये सब लाइंस ये सब मत चूज करना। ओके, ये चार ही ऑप्शन में से एक चूज करके लिख के आ जाना। फैनबॉयज में फॉर आ रहा है ना, फैनबॉयज वही मैं समझा रहा हूँ, फैनबॉयज में एफ फॉर आ रहा है। फैनबॉयज यूज कर सकते हो, बट मैंने आज तक नॉर तो यूज लिखा ही नहीं है, मैंने तो कभी नहीं यूज किया ये। ओके, सो फैनबॉयज में से ही उठाए हुए हैं, उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा एक एस डाल दिया और कुछ नहीं। ओके, ये जितने भी मैंने अभी तक सॉल्व किए उसमें ये चार में काम हो गया है मेरा। तो ये चार में ही खेलो, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ मच। थोड़ा सा समझ के बट आ सकता है कि सो आ सकता है, उतना ही समझ में बहुत टाइम होगा। अब आराम से स्पेलिंग चेक करते हैं। इनसाइट वर्ड का है, इनसाइट सही है। देन वी वर इन द देन वी वर द मोमेंट्स, एस एस द मोमेंट्स आ गया। अब यहाँ पे जो आपके पास टाइम बचता है ना, यूज दिस टाइम टू राइट एनी हिंट और टेम्पलेट ऑफ ऐसे इन योर नोटबुक। ओके, उस टाइम पे आप नोटबुक पे आपका ऐसे का जो भी लिखना है लिखो। ओके, क्योंकि ये टाइम आपका बचा हुआ है। मैं यहाँ पे कुछ टाइप करके नेक्स्ट नहीं कर पाऊंगा, नहीं यहाँ पे मैं कुछ भी कॉपी कर लूँ तो नेक्स्ट में जाके पेस्ट नहीं होने वाला है, वो यहीं पे पेस्ट होगा। वो यहीं पे पेस्ट होगा जितना मेरे को करना है। ओके, तो वो वहाँ पे ट्राई मत करना। ओके, आई थिंक वी आर गुड टू गो ऑन दिस पार्ट। मेरे को स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं दिख रही है कोई, कर ही देते हैं नेक्स्ट। Communication has changed significantly in the past 10 years. Discuss the positive and negative impacts of this change. Okay, मैं एक तरीका बताऊंगा कि हाउ टू राइट एन ऐसे। टेम्पलेट तो मैं कल देने ही वाला हूँ, बट ऐसे कैसे लिखा जाता है ये तरीके से लिखोगे कभी कोई रिस्क नहीं, स्कोर आने ही वाला है। पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन। ओके, द मोड ऑफ
Yeah, various modes of communication. नीचे नहीं आओ बेटा। पहला पैराग्राफ में कभी भी आप क्या सोचते हो वो मत लिखो, कि पहले पैराग्राफ में कभी भी आप क्या सोचते हो वो मत लिखो, सीधा सीधा इस तरह से कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुए हैं आज तक, ठीक है। पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, राज एस्टेबिलिटी तो खत्म हो गया, सेंटेंस वन एंड सेंटेंस टू विच मीन्स, नहीं रे राज इतना बड़ा चार चार सेंटेंस कहाँ ढूंढने जाएगा तू। ऐसे पर्सनल में मैसेज नहीं कर, ग्रुप पे पूछ, तेरा डाउट शायद कईयों को होगा। ओके, तो चलो अब। एंड से पहले कॉमा वैसे नहीं आता है, पर पीटी में कभी कभी डालना पड़ता है, मैं ये समझाऊंगा कैसे। ओके, टू द सेंडर दिस। बाद में चेक करते हैं। ये नाउ स्मार्टफोन। इंडिया।
अब आपके डाउट्स, चलो पहले अब पढ़ लेते हैं. सी दिस इज नो टेम्पलेट, बट इफ यू राइट इन दिस वे, एपनी में भले 15 में से 7 8 9 जो भी ग्रामेटिकली स्पेलिंग वाइज जो भी आता हो, इट्स फाइन. इस तरह से लिखोगे, आई वुड बी मोर देन हैप्पी. ओके, क्योंकि आप टॉपिक समझे हो, ठीक है, टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो. तो कम्युनिकेशन अगर वर्ड है, आपने मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं समझा. पहले तो कम्युनिकेशन क्या, द मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और ट्रांसफरिंग योर थॉट्स और आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन विच हैज चेंज्ड ओवर टाइम. ठीक है, देखो पीटी को ये चीज पसंद आती है, विच, दैट, फर्दर मोर, लास्टली, फर्स्टली, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ओके, सिंपल सेंटेंस इज दिस वन. ओके, ये सिंपल सेंटेंस है. बट दूसरा आता है कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें आप एंड यूज करते हो, ये वाला. ओके, और तीसरा जो सेंटेंस आता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. पीटी में जितने हो सके, चाहे वो समराइज स्पोकन टेक्स्ट हो, बोलते टाइम हो या लिखते टाइम हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करो. ट्राई टू यूज विच और दैट एज मच एज यू कैन. हियर various modes of communication and also the changes in it will be discussed. Okay, one of the major mode, the modes of communication in earth was 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 PHR through array post to another as a mode of communication. This method was नहीं आएगा, took a longer period of time. Also, there were no assurance. There was, सही है. Reuse receivers and this method is now, ये क्या कर रहा हूँ मैं, खाली एक्स्ट्रा क्या क्या डाल सकता हूँ ताकि मैं और इसको क्लियर कर सकूँ मेरे थॉट को. इज नाउ आउटडेटेड थैंक्स टू राइजिंग, मैं एडवर्ब्स ऐड करता जा रहा हूँ और कुछ नहीं. राइजिंग टेक्नोलॉजी, थ्रू टेक्नोलॉजी वी हैव नाउ ओवरकम, वी हैव नाउ ओवरकम दी चैलेंज की स्पेलिंग गलत होगी, चैलेंज ऑफ डिलेड communication. We now have smartphones and internet facilities through which we can easily, comma मत डालो through which के पहले, through which we can easily communicate with others. Also, comma, social media has a great influence on mass communication. It is an uprising source of communication. However, ये बहुत खुश हो जाए ऐसे. However लिख दिया था तो पीटी घर पे आएगा आपके, क्या बात है. देर आर ऑल्सो, देखो टेम्पलेट है मेरे पास, कोई चिंता मत करना. अगर आप नहीं लिख सकते हो तो वो टेम्पलेट तो मैं कल आपको अच्छे से बताऊंगा. बट दोज हु आर टारगेटिंग फॉर ईच 79, दे नीड टू लर्न दीज थिंग्स. ओके, दे नीड टू राइट लाइक दिस. टेम्पलेट वोंट वर्क फॉर ईच 79. ओके, 65 70 75 तक ठीक है. ईच 79 के लिए आई वोंट सजेस्ट यू टू यूज टेम्पलेट. फ्रॉड मैसेजेस आर ऑल्सो being spread quite
quickly on various plus adjective platforms which leave which have changed over. हाँ बात तो सही है. Independent clauses, just a sec, have which leaves डन. कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो आए मिल नहीं रही मेरे को. 219 वर्ड हो गए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, इट्स गुड. 210 से ज़्यादा ही रखना वर्ड लिमिट. 250 के ऊपर मत चले जाना. ओके, 210 से 240 के बीच में हम लिखेंगे. अगर आप 209 लिखते हो, 200 वर्ड एग्जैक्ट लिखते हो और दो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो आपका वर्ड लिमिट ही कम हो जाएगा. तो डोंट डू दिस मिस्टेक. ओके, वी हैव ना ओवरकम नहीं है, सही बात है, नहीं ओवरकम. ओके, नाउ डाल दिया है ओवरकम. चले चले, ये थोड़ी मिस्टेक होने दो. मैं यही बोल रहा हूँ वहाँ पे. ये मैं जो एग्जाम दे रहा हूँ इसी तरह से देना है वहाँ पे. इतना नहीं होगा, इतना प्रिसाइज, टू बी वेरी फ्रैंक. ओके, कि मैं जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पीटी इस तरह मार्क नहीं काटता. ओके, कि मेरा यहाँ पे मैंने ओवरकम्ड कर दिया तो मेरा 1 मार्क कट जाएगा, वो ऐप ही नहीं काटेगा. पीटी इस तरह नहीं काटेगा. उसे ये देखना है कि क्या मैंने एक बार भी मैसेज लिखा है. ओके, क्या मैंने ये, थैंक यू फॉर दिस, क्या मैंने एक बार भी यहाँ पे वो लिखा है जो थॉट प्रोसेस है कि लेटर्स और उसके बीच में कंपैरिजन, उसे ये जानना है. ओके, तो डोंट वरी कि इसमें अगर आपका कोई ग्रामेटिकली एक आधी चीज़ अगर गलत हो जाएगी, इट्स फाइन. 10 ग्रामर मिस्टेक होगी तो गए. ओके, 10 ग्रामर मिस्टेक होगी तो गए. ओके, और आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है अगर आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी अच्छी हो तो. ओके, थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड सुधारनी है. कल टेम्पलेट मिल जाएगा, पर टेम्पलेट के अंदर जैसे की लाइंस क्या होती है, ये जो लास्ट की लाइंस है ना, इसमें से कोई भी की लाइन नहीं है. ओके, इसमें से कोई भी की लाइन नहीं है. बट जैसे फॉर एग्जाम्पल के बाद मैंने लिखा फ्रॉड वाले जो लाइन लिखी, ये वाला, हाँ सॉरी, लास्ट पैराग्राफ में से कुछ की लाइन नहीं है. पर ये फ्रॉड मैसेजेस, ये कीवर्ड हुआ. ऐसा मेरे को कीवर्ड चाहिए ही होगा आपके साइड से. ओके, आपको स्मार्टफोन एक बार तो लिखना ही पड़ेगा, आपको एक बार तो इंटरनेट लिखना ही पड़ेगा अगर आप टेक्नोलॉजी वर्ड यूज़ करते हो. तो वो सब चीज़ें नहीं लिखा तो गए. ओके, तो गए. तो वो एक बार लिखना ज़रूरी है आपको. फॉर ये स्पेलिंग मिस्टेक मिल गई मेरे को. INTRO. ठीक है, आराम से स्पेलिंग चेक करो, बहुत टाइम होता है वहाँ पे. ठीक है, आई होप एक ही ऐसे आए, दो ऐसे ना आए. आए, एक ही आया, एक ही आया. फाइन, चलो. चलो, सेमिनार्स आर नॉट डिजाइन टू बी मिनी लेक्चर, देयर एजुकेशनल रोल ही होगा. दिस इज फाउंडेड ऑन दी. चले चले, कर ली, डोंट वरी. द इंटरनेट में द छोड़ दूंगा तो कोई चिंता नहीं मेरे को. दिस इज फाउंडेड. ऐसे में 15 में से 10 लाओ, 15 में से 15 मत लाओ. ओके, आई एम सेइंग दैट. WMP क्या होता है? WPM क्या होता है? वर्ड्स पर मिनट, इतना मैंने कभी ध्यान नहीं दिया है. आई कंप्लीट में ऐसे इन 10 मिनट्स, बस इतना पता है मेरे को, तो कैलकुलेट कर लेना. दिस इज फाउंडेड ऑन दी. अभी चलो चलो, वी गोइंग टू दिस रीडिंग पार्ट.
ड्यूटी या टास्क टास्क कर देते हैं। स्टार तो नहीं आएगा, कमिट भी आ सकता है, प्रोवोक डिस्कशन भी आ सकता है, लाइन्स नहीं आएगा, कमिट। I'll go with provoke part, देखेंगे फिर। In reality, however, the oh, आपको जो आंसर लगते हैं यू कैन राइट इन द नोटबुक, जो भी क्लास में बैठे हैं। बाकी लोगों को चैट बॉक्स में लिखना है, चैट बॉक्स में लिखो, नोटबुक में लिखना है, नोटबुक में लिखो। ओह, इतने भरे भरे वर्ड क्या है? एमसीक्यू मल्टीपल, आराम से पढ़ने का और एक टिक करने का। Which of the following statements are true? Glucose works so bad for arthritis, aging can weaken our bones. ये वाली line easy है, मैं I'll try to find this line. When we are young, there are fever, पता नहीं, depressing the drugs. ये वाली line नहीं मिली, aging can weaken our bones.
ongoing dynamic. They can also disrupt the healthy ongoing dynamic of bone being made. मेड वाली बात है, बाद में देखते हैं, लग तो रही है, देखते हैं। ये ना एटलीस्ट when we are young। प्योर हो गया गलत, ये तो है ही नहीं। Reducing the impact of glucose receptors seem like a logical way। एक ये ही लग रहा है और एक ये लग रहा है, पर सेकंड वाला टिक नहीं करना। ये फीवर की जगह कैंसिल हो गया। यहाँ पे खाली डाउट ये है, मस्ट बी अ रीजनेबल वेट, बट और कोई मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा बचे नहीं है। बस बस, इतना टाइम नहीं होगा वहाँ पे। There are insufficient sources of fresh water for humans. The industrial pollution के रिपोर्ट में ये डाल ही देते हैं। There are numerous means by which you can become impaired drinking water। ये ट्रू ही लगता है। आप ये नहीं पढ़ो, ये ट्रू ही लगता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के इफेक्ट बोथ अंडरग्राउंड एंड रेन वाटर, आई थिंक। यस। बस तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाओ, नेक्स्ट कर देने का। क्योंकि उसका मार्क आया नहीं आया कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, जितना जल्दी वो खत्म हो उसको नेक्स्ट करो, क्योंकि हमें आगे टाइम लेना है। मैन्युफैक्चरर सच एस नाम दिए हैं एक्सपेंडेड एट द सेम टाइम। ओके। आई थिंक दिस, पढ़ते हैं। आई थिंक दिस।
आइडेंटिफाइड है नहीं, डिफाइंड एक ही बचा है मेरे पास। छोड़। यहाँ आइडियल्स और रिचुअल दोनों आ सकता है। गिल्टी के ऑप्शन में सस्पिशियस दिया है, रिचुअल के ऑप्शन में आइडियल्स दिया है, सर्टेनिटी तो अकेला ही है। ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए रेजिस्टेंट दिया है, रेजिस्टेंस होना चाहिए, TANCE नहीं दिया है। रेजिस्टेंस ग्रेटर रेजिस्टेंस आता है, ग्रेटर रेजिस्टेंट नहीं आता। कंप्यूटर वुड फोर्स द बिल्डिंग द मोस्ट रीसेंट डिजाइन, एक्सपेंसिव रीसेंट के ऑप्शन में दे रखा है। बस सही है। ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। कहाँ मिलता है वो, तो पढ़ना ही पड़ेगा। वर्ड यूज फॉर डिस्क्राइब।
कैन बी सी और डी। नहीं, ये नहीं है। थोड़ा देखो, एमसीक्यू मल्टीपल एमसीक्यू सिंगल कुछ ज्यादा वेटेज रखता नहीं है। ओके, इवन इफ यू वांट टू स्कोर इच 79, ये इसका कोई ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, इट्स फाइन। ओके, दो आंसर दिमाग में होने चाहिए, दो ऐसे होने चाहिए जो ऑब्वियसली नहीं आ सकते। ओके, ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, बट इवन इफ यू वांट 90 आउट ऑफ 90 इन रीडिंग, वो सिर्फ और सिर्फ रीड अलाउड, रीडिंग इन राइटिंग ब्लैंक और ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक पे डिपेंड करेगा। ओके, ना कि इन सब चीज़ों पे। ओके, तो कुछ भी टिक करके जान लेना, अभी तो टाइम है अपने पास, पर एग्जाम में कुछ भी टिक करके जान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन नोटबुक। Well, what I want to focus on now is climate change, more specifically on the fact that climate change is a result of human activities. Now, there has been some disagreement regarding the extent to which human activity can be blamed for climate change. But I want to argue that there is evidence which clearly demonstrates that our own actions really are causing a genuine threat. The available evidence seems to indicate fairly conclusively that land and sea temperatures started to increase around 200 years ago. So, what's the significance of this? Well, 200 years ago roughly coincides with the beginning of the Industrial Revolution in the Northern Hemisphere. In other words, this was when our production of harmful gases really got going as a result of increased industrialization. Since that time, our production of gases has accelerated due to the fact that not only has industry grown in size, but it has also now spread to the southern hemisphere, indeed most parts of the world. So, in the last 200 years, as industry has grown, we can see a gradual rise in the temperatures, which, to my mind, is sufficient proof of the damaging effect of our actions, and needless to say, it's an issue which we need to address.
There are evidences that climate change is caused due to human actions. The first evidence of climate change was noticed many years ago. देखो 200 years ago था, पर आप 200 वर्ड मत लिखो, many years ago लिख दो. When the temperatures rose both in land as well as in the land as well as the sea. थोड़े वर्ड लिमिट बढ़ाने के लिए, okay? Due to industrial revolution, there is also a significant increase in the amount of harmful gases cause which causes climate change. This issue must be addressed carefully. ठीक है, as simple as that. Okay, ये कोई टेम्पलेट नहीं है, ये तरीका है. ये कोई टेम्पलेट नहीं है, ये तरीका है. अगेन टेम्पलेट कल बताऊंगा, पर इस तरीके से लिख के आओगे, भले ग्रामर गलत, स्पेलिंग गलत, यू विल स्टिल गेट फुल स्कोर. इन 90 आउट ऑफ 90 की ही बात कर रहा हूँ मैं. इस तरीके से लिख के आओगे तो. टेम्पलेट पे अटके रहोगे, टेम्पलेट में अगर कुछ गलती हो गई ना, सीधे 10 में से 5 हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता. ओके, तो फिलहाल मैं जो एग्जाम दे रहा हूँ, इट इज विदाउट टेम्पलेट. There are two main reasons why parents decide to educate their children at home. Either they dislike schools on principle, however odd those principles might be, or they don't believe their local schools provide an adequate education or the right sort of education for their children. If someone decides to teach their child at home, either by themselves or by employing a teacher, they have to convince their local education authority, LEA, that the teaching provided is satisfactory. Schedules, lesson plans and book lists must be shown, and it must also be demonstrated that the child is in fact learning and that they have adequate opportunities for physical education and meeting other children. Furthermore, while there is no formal assessment, officers from the LEA will come and inspect what is being done and look at the child's exercise books. If they are not satisfied, they make out a school attendance order. Now that story has been scotched as a part of a contingency planning, but it was a symptom of the dramatic turn of events in South Australia, and it flushed out other remarks from water academics and people like Tim Flannery, indicating that things were really much worse than had been foreshadowed even earlier this year. So is Adelaide, let alone some whole regions of South Australia, in serious bother? Considering that the vast amount of its drinking water comes from the beleaguered Murray, something many of us outside the state may not have quite realized. Is there a predicament, something we have to face up to as a nation? धारे नीट लास्ट के दो. ऐसा कुछ सुनाई दिया मेरे को. ऐसा कुछ सुनाई दिया. लीगर्ड. लीगर्ड तो अलग ही वर्ड था. Could be. I never heard this and I am not sure कि ये proper noun, ये कोई इंसान का नाम है, मतलब I don't know कि इसमें क्या मुरी में हम कैपिटल दिया, तो ये ऐसी ऐसी ब्लैंक एग्जाम में नहीं आएगी. ओके, जे आपकी जो प्रॉपर नाउन वाली ब्लैंक है ना, वो एग्जाम में नहीं आती. तो इट्स ओके, आप लोगों को सुनाई दिया है तो अच्छा, अच्छी बात है. GU इतनी भारी स्पेलिंग है इसकी, पर कैपिटल रखो कि ना रखो. प्रीडिगामेंट रहने दो, भले गलत जाती. क्योंकि ये नहीं, एग्जाम में नहीं सही जाएगी. अगर ऐसा कुछ आया भी तो भी एग्जाम में सही नहीं जाएगा. इन दिस केसेस हम क्या स्कोर करते हैं वही देखना है हमको. Consumer, you're probably consuming imports. If we have a trade war and we start slapping tariffs on all of those imports, the bill is going to be higher. If the world relies so much on trade, what is a trade war? And why do countries get caught up in them in the first place?
बर्ड इजी थे, थोड़ा फास्ट था बस, और कुछ नहीं. Millions of roses get handed out on Valentine's Day. But growing roses has an environmental impact worse than many other crops. Start with climate change. Most roses in the US and Europe are imported from warmer climes. All that flying and trucking adds thousands of metric tons of carbon dioxide to the atmosphere. Then there's all the water needed to, well, water the flowers. And the runoff fouled by copious quantities of pesticides needed to make the roses look perfect. There are also the wildlife and workers poisoned by all that fumigation. Add to that habitat destruction where floral plantations displace native forest and wetlands. Finally, there's the refrigeration needed to keep those blooms fresh. A new investigation into shark populations in the waters off Australia has discovered that there are two distinct species of great white shark, one to the east and one to the west of Bass Strait. This was discovered by tagging large numbers of sharks in the coastal waters all round Australia. Rather to the investigators' surprise, they found that while sharks from the east side certainly travelled to the west side of the continent and vice versa, they always returned to their home areas to breed. The two types of shark were found to have a distinct genetic makeup, indicating that interbreeding has not taken place. The implication of these research findings is that sharks may be more susceptible to changes in local marine environments than had previously been thought. Done. The Beehive is the common name for the executive wing of the New Zealand Parliament buildings, so called because its shape is very much like a traditional woven beehive. It's 10 stories high, with the levels becoming incrementally smaller the higher up they are. Scottish architect Sir Basil Spence did the original conceptual design in 1964, but the detailed design of the building was by the Ministry of Works, and they carried it through to fruition. It was opened by the Queen in 1977. When it was built, it was supposed to embody the spirit of New Zealand as a nation, but it's never really had that recognition in the way that buildings like, say, the Sydney Opera House have had. In a way, I suppose the Beehive was, for a long time, seen as an unfortunate hangover from the 1960s, but time has passed, to the point where people's feelings about it have gone through a kind of ironic celebration to real appreciation now. This year, we're planning to use a different type of assessment on this module. In the past, students were required to complete 2 long written assignments and also to do a presentation on a subject of their own choice. We've decided to ask you to write 4 shorter pieces of written coursework this year. We're also going to be more prescriptive about what you focus on in your presentation. This is because previously many students lost marks unnecessarily, simply because... अरे इतना बड़ा बीप. Land animals move easily through air because air does not slow them down. Sea creatures, on the other hand, have to move through water, which is hundreds of times thicker than air. A sea animal has to push itself through water in order to move. Sea animals use many different ways to swim, creep, or glide through water. Fish are able to swim by bending their bodies into waves. They have flattened fins and tails that push against the water like oar blades, converting their body waves into forward movement. The size of a fish's tail contributes to its swimming speed. Small tail fins are found in slow swimmers like the eel.
The medium-sized tail of the bass is linked with a medium to fast swimming speed. Long pointed tail lobes like those on the marlin are found only on fast. फास्टर था नहीं, स्विमर्स ही आना चाहिए था, चलेगा छोड़ो, ये अजीब साउंड होगा थोड़ा। Happy New Year! And if you've been away from work for a few days, you deserve some time off. After all, you've traveled far, even if you just stayed at home. According to NASA, just by being on the planet Earth in the last year, you zipped about 584 million miles around the sun at an average speed of about 67,000 miles per hour. Hey, I wasn't speeding in my inertial reference frame. Of course, the trip was not a perfect circle. As Kepler showed, the Earth's orbit is an ellipse, with the Sun at one of the two focal points. He also figured out the planet goes faster when it's at perihelion, nearer the Sun, than when it's at aphelion, its furthest distance, which would explain why summer seems to zip by, except that the seasons are a function of the tilt of the Earth's axis, not its different distances from the Sun. And the Earth rotated 365.25 times during its sweep around the Sun. The trip took 8,766 hours, or 525,960 minutes, or 31,557,600 seconds. वो इनिशियल वाले में डाउट है, आई वोंट टेक दैट। Humans can recognize each other by voice alone. I sound different from other 60-second science reporters, for example. In fact, lots of non-human animals of all types use voices to distinguish familiar individuals, including frogs, fish, lemurs, and penguins. And that unique audio fingerprint extends to a sound you may have heard in the forest on occasion: the drumming of a woodpecker. Researchers recorded multiple drum rolls from 41 great spotted woodpeckers, colorful red, white, and black birds living in Polish forests. They then used audio software to analyze them, and they found that the length of the drum rolls and the spacing between beats varied enough from bird to bird to tell the woodpeckers apart by drumming alone. The study's in the journal PLOS One. The scientists say this fact might be useful to woodpeckers in identifying each other, and to conservation biologists trying to tease one bird from another in a recording, for example, to count individuals in a given area. The bird's head banging could thus do away with that research headache. Sleep. There's nothing better than a nice, long, uninterrupted... I can't sleep when there's... But you ever notice, noise doesn't wake everyone. Now scientists have a better idea why. Because sound sleepers show a certain brain rhythm when they doze. Findings published in the journal Current Biology. To study the brain waves of a good night's sleep, scientists invited volunteers to snooze in the lab. While the subjects caught some Z's, the researchers monitored their brain activity. They then subjected the sleepers to more, and they found that those who were able to slumber straight through all the showed more short bursts of faster brain waves. This activity, the scientists say, is the brain's way of blocking out the and the while you're trying to rest. The scientists don't yet know of any way to boost those sleep-saving brainwaves, so until then, shut the door, make sure the late show's on a timer, and try to have sweet dreams. Nice. The program must be conducted in abidance with general regulations.
द प्रोग्राम मस्ट बी कंडक्टेड इन अबाइडेंस विद द जनरल रेगुलेशंस। यही था, कुछ और लगता है आप लोगों को? मस्ट बी कंडक्टेड, जी ये क्या है? चुप नहीं नहीं, with a wider get out abide विथ कहा था? विथ बीच में लिखा था मैंने, पर विद द जनरल रेगुलेशन के पहले में थे, मस्ट बी कंडक्टेड इन अबाइडेंस। मेरे को ये एक खाली अबाइडेंस वर्ड का है, बाकी तो सब ठीक है। एक मार्क्स ज्यादा ज्यादा जा सकता है अगर नहीं हुआ तो। अबाइडेंसेस तो था भी नहीं, एक्स्ट्रा क्या ही लिखूं अब? जहाँ जगह लिखे वहाँ डाल देता हूँ। जर्नल था राज? अरे नहीं, जनरल था। जर्नल रेगुलेशंस तो वो थोड़ा मीनिंग जनरल रूल्स, जनरल रूल्स बोलते हैं ना। इच्छा है तो लिख देता हूँ, पर वो जर्नल तो वो साइंटिफिक जर्नल वाला आता है, तो वो तो अलग हो गया, उसका प्रोनाउंसिएशन जर्नल। ये जनरल था, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन के हैं, तो वो जनरल वाला जनरल था। वो जर्नल तो बहुत ही अलग हो गया। मत मत लिखो ऐसा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा मीनिंग समझ लो। नेक्स्ट। The blue whale is the largest animal that ever lived. इसमें तो क्या ही एक्स्ट्रा लिखो, ये तो क्लियर सुनाई दिए। लिव ऑन अर्थ तेरे को अलग सुनाई दे रहा है? कब बोला लिव ऑन अर्थ? क्यों कंफ्यूज कर रहे हो दूसरों को? लिव्ड ऑन अर्थ, ओ माय गॉड। लिव ऑन अर्थ था कि नहीं? मेरे को क्यों नहीं, मेरे को तो नहीं सुनाई दिया। नहीं था? ये कब सुनाई दिया? एवर के बाद लिव्ड ही नहीं था, नहीं था, सॉर्टेड। चलो, ब्लू व्हेल के बीच में स्पेस तो मैंने रखी है, ब्लू और व्हेल के बीच में स्पेस रखो। नहीं, कुछ एक आधा तो ऐसा करेंगे जिसमें हम एक्स्ट्रा एक भी ना लिखे, तो मत लिखो एक्स्ट्रा इसके अंदर कुछ। ओके, वी हैव टाइम, बट नहीं लिखूंगा इसमें एक्स्ट्रा। Free Campus Tour runs daily during summer for prospective students. फ्री पहला वर्ड था, पर आगे द था या नहीं पता नहीं, इसलिए द में टी कैपिटल कर दिया, एफ फ्री एफ कैपिटल वाला कर दिया, और स्मॉल वाला भी कर दिया। कैंपस टूर रन डेली ऑन समर, समर्स फॉर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। फायर फायर कैंपस टूर तो आग लगा देंगे ना कैंपस में अपन, थोड़ा भारी हो जाएगा वो। फ्री ही था, फायर कैंपस टूर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और कुछ लगता है आप लोगों को? मेरे को तो नहीं लगता। डेली, आप ड्यूरिंग लिख रहे हो, रन ड्यूरिंग ऑन समर, मेरे को डेली ऑन समर लगता है। ठीक है, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग के बाद ऑन कैसे आएगा तो? मेरे को ऑन तो सुनाई दिया है, ड्यूरिंग ऑन तो नहीं आता। ड्यूरिंग ऑन समर लिख देते हैं, कुछ उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। ओके, डेली ड्यूरिंग ऑन नहीं आया ऐसा, डेली ही था। चेक कर लेंगे, ये ड्यूरिंग वाला डाउट है मेरे को, मैं नहीं लिखता। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट।
A good academic paper should be clear. बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना, इतना था भी ठीक है। गुड एकेडमिक पेपर शुड बी क्लियर, जरूरी नहीं है सब में कुछ करो। इतना छोटा सा WFD पूछा है, खत्म हो गया एग्जाम। चलो, जब तक इसका स्कोरिंग होता है, पर इसका तो पता चल गया होगा। लेट्स सी WFD का क्या सीन है। क्या बात करते हो, जल्दी स्कोर दे रहा है ये। ब्लिगर्ड में सही है, स्पेलिंग पर बी स्मॉल किया है, बट आई डोंट नो कुछ होगा इसमें, इसलिए ब्लिगर्ड BLEA स्पेलिंग सही है, पर ठीक है। एक पक कटा है उसका, ये कुछ फर्क नहीं पड़ते हैं। लेट इट बी 3 आउट ऑफ 4 सही है। 4 6 WFD तो सही है। ड्यूरिंग था, गुड। द फ्री कैंपस स्टूडेंट्स डेली ड्यूरिंग ऑन नहीं था, चलेगा। एक पकड़ उसमें जाता। अवॉइडेंस इज करेक्ट वन, ठीक है। रीडिंग 50% मेंटेन्ड है या नहीं? 50%, 50%, 50%, 50%, 50% मेंटेन रहना चाहिए। थ्री पैराग्राफ तो क्या ही करना। एक पक आ गया बहुत है। ओहो आ गए, बहुत पक आ गए। 50%, 50%, 50%। कॉन्स्टेंट और आइडल्स, आइडल्स यहाँ पे आया था, पॉलिटिकल आइडल्स, हाँ हो तो सकता है। बट मैंने आइडल्स का ऑप्शन में रिचुअल सोचा था, तो इस वजह से आई वॉज कंफ्यूज इन दिस पार्ट। ठीक है, एक, दिस इज फाइन। बहुत हो गए, बहुत हो गए, बहुत हो गए ये तो। हम्म, अरे यार स्पीकिंग कैच कर रहे, कर रहे। चलो, जब तक स्कोर आता है तब तक लेट्स डिस्कस क्या क्या आपको इसमें समझ में आया, क्या क्या हार्ड लगा, क्या क्या इजी लगा। ओके, नाउ यू कैन अनम्यूट योर माइक्रोफोन्स। अगर आपको कुछ डिस्कस करना हो तो आई विल अलाउ द पार्टिसिपेंट्स। जस्ट सेक। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं एक दूसरे को, और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, यू कैन आस्क। इसी तरह एग्जाम में करो। और सी, कल किसी ने पूछा था कि व्हेन आई कैन डिसाइड द टाइम रेडी और नॉट। तो डिसाइड कैसे होगा? जब आपको कोई भी रैंडम सॉफ्टवेयर का रैंडम एग्जाम देने को कोई बोलता है। ओके, पहले तो घबराओ नहीं। हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, कोई चिंता नहीं है। फिलिंग द ब्लैंक लिसनिंग एक आधा वर्ड हार्ड आ गया, कोई चिंता नहीं है। रिलैक्स रहना पड़ेगा। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड अजीब थे, घबराओगे तो निकल ही जाएगा। ओके, घबराओगे तो निकल ही जाएगा। सो डोंट डू दिस थिंग। ओके, बी कॉन्फिडेंट। आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो यू कैन आस्क। एक बार जितने लोग हैं ना, एक बार ट्राई करना कोई टेम्पलेट यूज किए बिना कितना स्कोर आता है। Okay? एक बार ट्राई करना। पीटी ने ये थोड़ी कहा है कि टेम्पलेट बोलोगे तो ही स्कोर दूंगा। टेम्पलेट तो एक तरीका होता है कि वहां पे अगर घबरा गए तो कैसे उसको संभाल लेने का, या कम वर्ड्स कैच हुए। मेरे को जहाँ तक लगा रिटेल लेक्चर और समराइज स्पोकन टेक्स्ट काफी इजी था, सब सुनाई दे रहा था। उसमें कुछ ऐसा नहीं था जो कैच ना हो सके। ऐसे का टॉपिक भी इजी था, तो क्यों टेम्पलेट टेम्पलेट करना। हार्ड टॉपिक आता है तो यस, टेम्पलेट करके जाओ।
ईच 65 चाहिए तो एक्यूरेसी कितनी रखनी चाहिए ऑल मॉड्यूल में? ईच 65 के लिए किसी एक में यू हैव टू गो टू 75, स्पीकिंग या लिसनिंग किसी एक में 75 करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली रीडिंग को 75 टारगेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें रीड अलाउड आता है। और ये आप डायरेक्टली राइटिंग को भी टारगेट नहीं कर सकते हैं ईच 75 या 75 के ऊपर जाने के, क्योंकि राइटिंग में से 55 to 60 मार्क का राइटिंग तो सीधा सीधा लिसनिंग में से आ रहा है। तो आपको स्पीकिंग या लिसनिंग दोनों में से किसी एक में 75 लाना पड़ेगा फॉर मिनिमम। 74 भी नहीं चलेगा, 75 लाना पड़ेगा टू स्कोर ईच 65। यस ज्योति, इट इज ओके इफ वी, आप मैसेज ग्रुप पे डायरेक्टली करो, ऐसे डायरेक्ट मैसेज करोगे शायद वो डाउट काफी लोगों को और भी हो। यस आप फ्यू नहीं, यू डू मेनी मिस्टेक्स, जितनी भर के मिस्टेक करनी है करो, पर टेम्पलेट यूज नहीं करोगे ना वो चलेगा। मेरे को सीखोगे तो 100% स्कोर आने वाला है। ओके सारी है किसी की, तो यस डू मिस्टेक्स, पर मिस्टेक्स इंप्रूव होगी। रीड अलाउड में मिनिमम पॉज कितने ले सकते हैं? ये नेचुरल पॉज जितने लेने हैं लो, शांति शांति से 40 सेकंड बोलना है अपने को, ये समझ लो 40 सेकंड में आपको जितने नेचुरल पॉज लेने हैं। मैं बोलते बोलते अ करके अटक गया तो गया, ओके मैं ऐसे बीच में से अटक गया, जैसे ये कोई रीड अलाउड है, द कोरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल देन ऐसा कुछ हो गया एंड मल्टीट्यूड ऑफ, तो नहीं चलेगा। ओके तो नहीं चलेगा, आपको ऐसे पॉजेस नहीं लेने। The correlation between elevated blood pressure levels and a multitude of health complications is widely acknowledged. इस तरह के पॉजेस चलेंगे, बट correlation between elevated blood pressure levels and multitude of health complications ये नहीं चलेगा। ये घबराने वाला पॉज है, वो एक भी नहीं चलेगा। ओके वो एक ले लिया तो गए। ईच ईच 55, ईच में 55 इजीली आ जाता है। थोड़ा सा रीडिंग 50% ध्यान दो, मैं तो ईच 65 की बात कर रहा हूँ। अभी जैसा किया उसका आधा कर दो तो भी ईच 55 आ जाते हैं। ओके अभी जो मैंने किया दैट इज टू रेंज बिटवीन 68 to 75। 79 प्लस के लिए ऑफ कोर्स थोड़ा सा और फिनिशिंग चाहिए होगा इन हाईलाइट, करेक्ट समरी, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा 79 ईच के लिए। ठीक है क्योंकि पीटी कैसा है, ओवरऑल 85 दे देगा, तीन में 79 के ऊपर दे देगा, पर किसी एक में ना 78 पे आके अटका देगा। ओके किसी एक में 78 के आगे, क्योंकि अगर आपके हाईलाइट करेक्ट समरी इधर अपना वो सीन नहीं है, हाईलाइट करेक्ट समरी एमसीक्यू मल्टीपल एमसीक्यू सिंगल सब कुछ ही जीरो हो गया है, एक में भी एक मार्क भी नहीं आया, या रीड और पैराग्राफ तीनों तीन जीरो है, तो आपको वो किसी एक टॉपिक में 79 की जगह 78 पे आके अटका देगा। ओके ईच 55 के लिए तो खाली चार टॉपिक है, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक। दिन रात ये करो ईच 55 आ जाते हैं, बाकी टॉपिक प्रैक्टिस ही मत करो चलेगा। ये चार टॉपिक करोगे ईच 55 डन। हाँ राज दिया है मेरे को, स्कोर भेज देना। आई एनालाइज दैट पार्ट। जितनों ने भी एक बार एग्जाम ऑनलाइन बैठे हैं जो बाहर से ज्वाइन हुए हैं, जितनों ने एग्जाम दे रखा है, आप मेरे को एक बार स्कोर कार्ड भेज देना, मैं एनालाइज करके आपको बता दूंगा कितना स्कोर आता है। और आपको क्या गलती हुई है आपकी। ओके डू नॉट डू स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेगी। देखो ये चीज़ का खास ध्यान रखना, एक आधी स्पेलिंग मिस्टेक इज फाइन, और बाकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो तो ही अच्छा। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन तो सही है। एसएसटी में ओनली एन एंड यूज कर सकते हैं, हाँ हाँ कर सकते हैं, एसएसटी में तो कोई चिंता नहीं है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट इफ यू आर अपियरिंग फॉर पीटी एकेडमिक, एसएसटी में लिख ही सकते हो एंड। ओनली एंड मतलब क्या है? समराइज स्पोकन टेक्स्ट में ओनली एंड क्या होता है? समराइज रिटर्न टेक्स्ट होता तो अलग चीज है। आपका मेरे को लग रहा है आप कंफ्यूज हो बेटा। हाँ एस डब्ल्यू टी में ओनली एंड यूज नहीं कर सकते ना, वही तो अभी अपन ने समझा
कि पीटी को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पसंद है। ओनली एंड लिख दिया तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए ऑल्दो, व्हिच, हाउएवर, बिसाइड्स, डिस्पाइट, इसमें से ऐसे कोई वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। ऐसे वर्ड्स यूज करोगे तो पीटी ज्यादा स्कोर देगा। ओके, यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, एक टॉपिक होगा गूगल पे, खाली देख लेना कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सीख लो। तो ऐसा करके आओ एसडब्ल्यूटी में। डू वी नीड टू चेक विद पियर्सन ऑफिशियल मॉक टेस्ट? देन नो, नॉट एट ऑल। इतनी घटिया पियर्सन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट है ना, इतनी घटिया मॉक टेस्ट है ना वो, कि आधा टाइम वो सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है। 31 रुपये एक तो वो लेते हैं। उनमें रिपीट सेंटेंस में बीप की आवाज़ आती है। अ, उनके आंसर शॉट क्वेश्चन में बीप की आवाज़ आती है, जो एक्चुअल एग्जाम में नहीं होता है। प्लस उनका जो डिस्प्ले है वो बहुत अजीब है। नेक्स्ट बहुत सेंसिटिव है उनका, एक बार नेक्स्ट क्लिक कर दिया ना, तुरंत नेक्स्ट। एटलीस्ट यहाँ वाले ऐप यूनी वगैरह में यू हैव चांस कि आप हेडफोन चेक कर सकते हो। उसमें स्टार्ट पे क्लिक करोगे, हेडफोन चेक नहीं होगा, सीधा सीधा नेक्स्ट हो जाएगा। सिर्फ स्पीकिंग का एक एक्यूरेट स्कोर उसके अंदर पता चल सकता है, उसके अलावा किसी चीज़ का नहीं। सेकंड, उसके अंदर राइट फ्रॉम डिक्टेशन पे वर्ड लिमिट है। आप 12 वर्ड से ज़्यादा राइट फ्रॉम डिक्टेशन में लिख नहीं सकते। प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर की, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ जो पीटी की है। तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में वर्ड लिमिट हो गई। सेकंड, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में अगर एक भी वर्ड एक्स्ट्रा लिखा ना, तो वो राइट फ्रॉम डिक्टेशन जीरो ही दे रहा है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, जीरो ही देगा। आपने 11 वर्ड सही लिखे, 12वां वर्ड गलत लिखा है ना, तो जीरो ही स्कोर देगा। तो वो एक पीटी के प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर में ग्लिच है। तो डू नॉट बाय प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर, वो अभी तक अपडेट उन्होंने नहीं की है। गिव एग्जाम इन एनी। अच्छा, अपनी बात हुई थी कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको फ्री में एग्जाम दिला सकते हैं। तो आई विल शेयर द लिस्ट ऑफ दो सॉफ्टवेयर्स, गिव मी अ बाई। तो उसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगी, अकाउंट बनाओ और फ्री मॉक टेस्ट दे दो। अगर आप इंडिया में हैं, जितने भी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए इंडिया में, लेट मी नो, तो हम हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका भी आईडी पासवर्ड दे दूंगा, तो आप एक मॉक टेस्ट उसमें देख सकेंगे। ओके, तो कोई कंसर्न नहीं, बाकी मैं आपको भेजता हूँ वो तो। इसका देखते हैं आ गया कि नहीं आया। आ गया, ओके। देखो स्पीकिंग, चले 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 चले। क्या क्या है ध्यान रखने लायक चीज? रिटेल लेक्चर तो कोई भी सॉफ्टवेयर स्कोर नहीं देता, कोई भी सॉफ्टवेयर रिटेल लेक्चर का स्कोर नहीं देता है, चाहे वो गुरुली हो, 79score.com हो, पीटी नोट हो। सब सॉफ्टवेयर में रिटेल लेक्चर में कमी आते हैं, पर ऐसा वहां पे नहीं होने वाला। डब्ल्यू एफ डी ने बचा लिया है हमको, डब्ल्यू एफ डी ने बचा लिया है। कोई डाउट?